हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2। इन प्रीवियस एक्सरसाइज वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रेटर, एंड इन दिस एक्सरसाइज वी यूज द मिड पॉइंट थ्योरम एंड द कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, व्हाट इज द मिड पॉइंट थ्योरम and what is the converse of the midpoint theorem. Students, when in a triangle it is given that the midpoints of two sides, if the midpoints of two sides are given to you, then the line joining these two midpoints is parallel to the third side and a half of it. Here, suppose ABC is the triangle and D and E are the midpoints. So the statement of the midpoint theorem the line joining the midpoints of two sides of a triangle, the line joining the two sides of the line joining the midpoints, the line joining the midpoints of two sides is parallel to the third side. And half of it. So student, when we join the midpoints of two sides of a triangle, then it is parallel to the third side and half of it. Mathematically we can write it in triangle ABC if D and E are the midpoints. Of sides AB and AC respectively. Then joining these, अगर इनको मिला देंगे हम तो हमारे पास की लाइन सेगमेंट आ जाते हैं DE is parallel to BC and DE is equal to half of BC. So this one is the statement of midpoint theorem, and this one is the mathematical representation of midpoint theorem. We can write when D and E are the midpoints, then it is parallel. The line joining these 2 points, it means DE is parallel to the third side and half of the third side, and its converse of midpoint theorem. So student, in this, when a line drawn through the midpoint of one side of a triangle, then parallel to the another side, then it bisects the third side. In a triangle, if a line drawn through a midpoint of one side, here D is the midpoint. Converse of midpoint theorem. The line drawn through midpoint of one side, and parallel to another, then it bisects the third side. So
student, converse of midpoint theorem, the line drawn through midpoint of one side of a triangle and parallel to the another side, then it bisect the third side. तो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेंगे. देखिए आपको कन्वर्स कब लगाएंगे हम, जब हमें किसी भी ट्राइंगल में एक साइड का मिड पॉइंट दे रखा हो. हियर डी इज द मिड पॉइंट एंड थ्रू डी वी ड्रॉ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू बीसी. हियर डी ई इज पैरेलल टू बीसी. इफ डी इज द मिड पॉइंट, मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आप लिखेंगे इसको, इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ AB and DE is parallel to BC. If the midpoint of one side is given and the side drawn through the midpoint is parallel to the other side, then it bisects the third side. Therefore, DE bisects AC. Or we can write E is the midpoint of AC. So students, ये आपकी midpoint theorem और converse of midpoint theorem जिनका आप यूज करेंगे. Now student, we solve its first question. ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD and DA. आपको सबसे पहले क्वाड्रेटल बनानी है. क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर मैं आपके सामने बना रहा हूं. दिस इज द फिगर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. हियर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल and DEF are PQR and S are the midpoints of AB. P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, and R is the midpoint of CD, S is the midpoint of AD, and AC is its diagonal. AC हमें diagonal दिया गया है. So student, to prove, आपको क्या प्रूव करना है? Here we prove, first part में हमें प्रूव करना है SR is parallel to AC and SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. And in second part, we have to prove PQ is equal to SR. And third part में we have to prove that PQRS is a parallelogram. कि PQRS एक parallelogram है. Yes students, सबसे पहले देखिए हम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम्स का यूज करेंगे. अगर हमने एसी डायगोनल को मिला लिया है, हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई हैं और उनमें मिड पॉइंट आपको दे रखा है. तो सबसे पहले हम लेते हैं, देखिए एस आर को हम मिला देते हैं. एस एंड आर द मिड पॉइंट्स. लिखेंगे बिकॉज फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं पहले. आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स of sides R and S, so CD and AD respectively. Now, by using midpoint theorem, देख लीजिए पहले कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं उसका कंसीडर करिए. पहले इन ट्राइंगल ACB R and S are midpoints. Therefore, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC by using midpoint theorem. मिडपॉइंट थ्योरम का यूज किया हमने. सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है. नाउ
वी हैव टू प्रूव दैट बी पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू को एस आर के बराबर दिखाना है हमें। अब दूसरी ट्राइंगल लेंगे हम, एन ट्राइंगल ए बी सी, एन ट्राइंगल ए बी सी, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स of AB and BC respectively. Therefore, the line joining the midpoints is parallel to the third side and half of it. So PQ is parallel to AC and half of AC. PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. सेकेंड पार्ट करेंगे हम, सॉरी सेकेंड पार्ट ही कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट के लिए अब आप देखेंगे हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, हमें एस आर यहां पे हाफ ऑफ एसी के इक्वल है और पी क्यू भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल है। यूजिंग इक्वेशन 2, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, लाइन इक्वल टू सेम लाइन, आर इक्वल टू इच अदर। अगर दो लाइनें एक ही लाइन की इक्वल होती हैं तो वो आपस में इक्वल होगी, दोनों ही हाफ ऑफ एसी की इक्वल आ रही हैं, इट मींस एस आर और पी क्यू बराबर होगा। तो सेकंड पार्ट हमारा हो गया। एंड आल्सो थर्ड पार्ट के लिए भी आप इन्हीं दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। हियर वी टेक दिस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड इट हैज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, it has one pair of opposite sides is parallel and equal. In quadrilateral PQRS, SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ using equation 1 and 2. यहां पे देखिए इक्वेशन 1 में SR जो है वो AC के पैरेलल है, यहां पे जो PQ है वो AC के पैरेलल है। लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यहां पैरेलल हो गई और ये इक्वल हो गई है। किसी भी क्वाड्रेटर में अपोजिट साइड्स का एक पेयर अगर पैरेलल और इक्वल है हम कहेंगे ये एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर PQRS is a parallelogram. Now student, we solve its second question. Now in question number 2, ABCD is a rhombus. It is given to you that ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and AD respectively. सबसे पहले एक rhombus ड्रॉ करेंगे। A, B, C, D is a rhombus. Here A, B, C, D is a rhombus. ABCD एक rhombus है and PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and AD. And students, we have to prove that it is a rectangle. PQRS is a rectangle. To prove, to show PQRS is a rectangle. यस स्टूडेंट, सबसे पहले हम यूज करेंगे यहां पे देखिए PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया बिल्कुल सेम वैसे ही आप एक डायगोनल मिला लीजिए आप इसका, ज्वाइन AC एंड हियर PQ इज पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ AC। इन ट्रायंगल ABC, P and Q are the midpoints. Midpoints अगर दे रखी हैं
स्टूडेंट्स तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल और हाफ होती है। Therefore, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. By using midpoint theorem. Yes, midpoint theorem का यूज किया हमने। Line joining the midpoints is parallel to the third side and half of it. तो इसका यूज करके अभी नेक्स्ट दूसरी ट्रायंगल लेंगे हम। इसमें हमारा एस आर जो है, here एस आर, दूसरे ट्रायंगल लिखे इन ट्रायंगल ACD, R and S are the midpoints. Of CD and AD. CD और AD के midpoints हैं, therefore SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. इक्वेशन 1 और 2 आपके सामने है स्टूडेंट्स। तो 1 और 2 इक्वेशन को लेंगे आप यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। PQ पहले पैरेलल को देख लेते हैं। हाफ ऑफ दोनों ही एसी के पैरेलल हैं, तो PQ इक्वल टू PQ इज पैरेलल टू SR एंड अभी इक्वल देखिए आप, हाफ ऑफ एसी के बराबर है दोनों ही। राइट साइड के बराबर, लेफ्ट साइड के बराबर होगी। PQ इक्वल टू SR। अब देखिए अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो गया है। कौन से क्वाड्रेटल में? इन क्वाड्रेटल PQRS। PQRS एक क्वाड्रेटल आप ले लीजिए। PQRS इज ए क्वाड्रेटल इन विच PQ and SR are parallel and equal. PQ equal to SR and PQ parallel to SR. Therefore, PQRS is a parallelogram. PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया स्टूडेंट्स। तो अभी कोई भी पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होगा। इफ हियर वी प्रूव इट्स वन एंगल हैविंग मेजर 90 डिग्री। अगर इसका एक एंगल भी हम 90 डिग्री का प्रूव कर देंगे तो ये एक रेक्टेंगल होगा। सो ड्राइंग अनदर डायगोनल BD। यस, रोम्बस के डायगोनल आप जानते हैं, वी नो दैट diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. Therefore, angle 1 is equal to 90 degree. Yes, जो angle 1 है वो हमारा 90 डिग्री का होगा। यस स्टूडेंट्स, एंगल 1 हमारा 90 डिग्री का आ गया है। और आपको एक छोटा जो ये है इसको PMON एक पैरेललोग्राम अगर हम प्रूव कर देते हैं इसको, इफ दिस वन इज ए पैरेललोग्राम वी प्रूव PMON is a parallelogram and we know that the opposite angles of parallelogram are equal and angle 1 is 90, therefore this angle is also equal to 90 degree. तो ये आप एंगल 2 ले लेते हैं, ये हमारा एंगल 1 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए देखिए आपको पता है ये दोनों लाइंस पैरेलल और इक्वल है, ऐसे ये भी दोनों पैरेलल और इक्वल है। तो यहां से आप पहले प्रूव कर चुके हो AC is parallel and equal. Also, AC is parallel to PQ and AC और PQ पैरेलल है, और जो TS है TS parallel to BD. Therefore, PMON is a parallelogram.
ये एक पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया एंड वी नो दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। Therefore, angle 2 is equal to angle 1. Opposite angles of parallelogram are equal. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और देखिए एंगल 1 हम 90 का प्रूव कर चुके हैं बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore, एंगल 2 भी हमारा 90 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स PQRS को पैरेललोग्राम हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। PQRS इज अ पैरेललोग्राम एंड इट्स वन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मेजरमेंट है उसका, हम कहेंगे therefore PQRS is a rectangle. Hence PQRS is a rectangle. यानी कोई भी पैरेललोग्राम है उसमें एक एंगल अगर हम 90 का प्रूव कर देते हैं तो वो एक रेक्टेंगल होगा। Now we solve its next problem. Yes, in question number 3, ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and AD. Here P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD and S is the midpoint of AD. Friends, line joining the midpoints is parallel to the third side and half of the third side. ये midpoint theorem का यूज करना है इसमें भी। आपको सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन में क्लियरली है ABCD is rectangle। रेक्टेंगल हमें दे रखा है टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि PQRS is a rhombus। तो स्टूडेंट्स रोम्बस प्रूव करने के लिए आपको किसी भी क्वाड्रेंटल की चार साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। किसी भी क्वाड्रेंटल में अगर 4 साइड्स इक्वल हैं तो हम कहेंगे यस इट इज ए रोम्बस। सो इन दिस क्वाड्रेंटल PQRS को आपने रोम्बस प्रूव करना है। सबसे पहले आप कोई भी डायगोनल मिलाएंगे, मिडपॉइंट थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल ABC P and Q are the midpoints of AB and AC. Therefore, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC by using midpoint theorem. मिडपॉइंट थ्योरम का हमने यूज किया है इसमें। और स्टूडेंट्स अभी दूसरी ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल यानी हमने ये दोनों लाइन्स जो मिलाई हैं वो दोनों इसके पैरेलल हाफ होंगी। अब SR को मिला लीजिए, ABC ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ADC R and S are the midpoints therefore SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. The reason is same by using midpoint theorem. So using equation 1 and 2, 1 और 2 को यूज करेंगे आप। SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ. As PQRS is a parallelogram. यस, किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल और इक्वल है तो हम कहेंगे यस दैट वन इज पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट आपको एक रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें इसकी साइड्स को इक्वल दिखाना है। पहले PQRS को हम मिला देते हैं। PQRS हम प्रूव कर चुके हैं कि ये पैरेललोग्राम है और इसको हमारे पास एक ट्रायंगल है ये वाली।
और एक ट्राइंगल हमारे पास है पी क्यू आर एस। ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, शेडिंग पोर्शन आप देख रहे हैं, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और किसी भी पैराग्राम में अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल आती हैं, हम कहेंगे वो एक रोम्बस होगा। यस, पैराग्राम हम प्रूव कर चुके हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए आप, पहले सबसे पहले तो कि एडी जो साइड है वो बीसी के बराबर है। AD is equal to BC, opposite sides of rectangle. अगर AD और BC इक्वल हैं, उनके हाफ भी इक्वल होंगे। हाफ ऑफ AD is equal to हाफ ऑफ BC, और वी कैन राइट हाफ ऑफ AD को हम लिखेंगे AS is equal to BQ। यस, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ये हमने प्रूव कर दिया पहले। अब ये दो ट्राइंगल्स हम लेंगे, इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल PBQ। AS is equal to BQ, proved above, it is proved। 3 ले लीजिए इसको, प्रूव्ड इन इक्वेशन 3 में हमने प्रूव कर दिया इसको। एंड P is the midpoint, so AP and also this angle and this angle is equal to 90 degree। Angle A is equal to angle B, each 90 डिग्री। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स का मेजर जो है वो 90 डिग्री होता है। एंड AP is equal to PB, because P is the midpoint। of AB। PAB का मिडपॉइंट है। दोनों ट्राइंगल्स SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गई। यार ट्राइंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए APS BPQ बाई SAS। CPCT से हमारा जो PS है वो PQ के बराबर आ जाएगा। PS बराबर PQ CPCT से। फ्रेंड्स, PQRS को हम एक पैराग्राम प्रूव कर चुके थे और उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। यस, वी प्रूव दैट दीज साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इन ए पैराग्राम। इफ adjacent sides are equal, then it is a rhombus। Therefore, hence PQRS is a rhombus। तो सबसे पहले आपको एक पैराग्राम प्रूव करना है PQRS को। आफ्टर दैट वी प्रूव दैट इट्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देन इट इज ए rhombus। So friends, today we solve first 3 questions of this exercise, and in next video we will discuss the remaining questions of this exercise. Till then, thanks to all of you and have a nice day.